اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کے کہتے ہیں یہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ مودی صاحب آپ اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکے تو آپ کے بچے کہاں سے آتے آپ کیا جانتے ہیں بچوں کی محبت؟ آپ کا کوئی ہے ہی نہیں، اکیلے ہو اکیلے ہی جاؤ گے۔ ان سے پوچھو جن کی اولاد ہے، ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس 2 مکان ہوں گے، ایک مکان تمہارا چھین کے مسلمانوں کو دیا جائے۔ یہ جھنڈا کبھی جھکا نہیں ہے، انشاءاللہ نہ جھکے گا۔ کوئی دھرم برا نہیں ہے، انسان برا ہے، دھرم برا نہیں ہے۔ کئی لوگوں میں خاص کر فوج کے اندر یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ نیشنل کانفرنس پاکستانی جماعت۔ اگر نیشنل کانفرنس کو پاکستان جانا ہوتا تو 47 میں کوئی روک نہیں سکتا، ہم پاکستان گئے ہوتے۔ افسوس وزیر اعظم کہ آپ کی سوچ اتنی نیچ ہے۔ اگر تمہارے دال کے ڈبے میں کچھ رکھا ہوگا یہ اس کا ایکس رے کریں گے۔ ارے مودی صاحب ہم لوگوں کا ایکس رے نہیں کرتے، دالوں کا کہاں سے ایکس رے کرو گے؟ یہ مسلمان جو ہے یہ ہندوستان کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ گھس پہ کیا ہے؟ یہاں تو مغلوں نے بھی 800 سال راج کیا، اس سے پہلے بھی دوسروں نے راج کیا، اس کے بعد انگریز بھی آئے۔ تو مودی صاحب مجھے یہ آپ بتائیے کہ آپ نہیں ہو سکتے ان کی اولاد؟ دیکھیں سب سے بڑی بات آج یہ ہے کتنے سالوں کے بعد ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں میں خاص کر فوج کے اندر یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ نیشنل کانفرنس پاکستانی جماعت ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں یہ سنیے، ہماری سچ نہیں ہے۔ اگر نیشنل کانفرنس کو پاکستان جانا ہوتا تو 47 میں کوئی روک نہیں سکتا، ہم پاکستان گئے ہوتے، نہیں گئے۔ ہم نے اس وقت اتحاد اور اتفاق کیا گاندھی کے ہندوستان سے، نہرو کے ہندوستان سے، مودی کے ہندوستان سے نہیں۔ مودی کا ہندوستان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک مذہب رہے گا، باقی جتنے بھی دین ہیں وہ سب اس کے نیچے رہیں گے۔ وہ کہتا کیا ہے کہ ہم بولیں گے آپ سے کہ آپ کھاؤ گے کیا، آپ پہنو گے کیا، آپ کیسے نماز پڑھو گے، آپ کیسے چلو گے، کس راستے چلو گے، یہ وہ فیصلہ کریں گے۔ کہتا کیا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، تقریر کرتا ہے وزیر اعظم ہندوستان جو سب کا وزیر اعظم ہے، مگر وہ بھول گیا اس بات۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھو یہ مسلمان جو ہے یہ ہندوستان کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ گھس پہ کیا ہے؟ میں مودی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تو مغلوں نے بھی 800 سال راج کیا، اس سے پہلے بھی دوسروں نے راج کیا، اس کے بعد انگریز بھی آئے۔ تو مودی صاحب مجھے یہ آپ بتائیے کہ آپ نہیں ہو سکتے ان کی اولاد؟ کیا پتا، اگر آپ پیچھے جائیں آپ بھی تو پھر باہر کے ہیں، آپ کیسے یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ آپ یہاں کے ہیں؟ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کے کہتے ہیں یہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ مودی صاحب آپ اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکے تو آپ کے بچے کہاں سے آتے؟ آپ کیا جانتے ہیں بچوں کی محبت؟ آپ کیا جانتے ہیں ان کا لگاؤ، کس طرح وہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اکیلے ہو اکیلے ہی جاؤ گے۔ ان سے پوچھو جن کی اولاد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی اولاد اللہ نے دی ہے۔ تیسری بات وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس 2 مکان ہوں گے، ایک مکان تمہارا چھین کے مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ تیسری بات کیا کرتا ہے؟ جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں ہندوؤں کی، جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کو منگل سوتر ہوتا ہے، اور پنڈت عورتیں اگر آپ نے دیکھی ہوگی جو بزرگ ہیں، تمس لگاوا سو جج ہو، کہتا ہے کہ دیکھو اس کو تم سے لیا جائے گا، اس کو پگھلا کے سونا اور
चांदी जो है अलग की जाएगी और इसके पैसे जो हैं मुसलमानों को दिए जाएंगे। अफसोस अफसोस वज़ीर आज़म कि आपकी सोच इतनी नीची है। फिर क्या कहता है इनको डराने के लिए? कहता है देखो अगर तुम्हारे दाल के डब्बे में कुछ रखा होगा ये उसका एक्सरे करेंगे। अरे मोदी साहब हम लोगों का एक्सरे नहीं करते, दालों का कहां से एक्सरे करोगे? यार देखो इसका वज़ीर आज़म की सोच देखो, सोच देखो। और हमें कहता है हमें तो अल्लाह ने रखा है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ लेने वाला अल्लाह है। उसके सिवा कोई इज्जत नहीं दे सकता, कोई जिल्लत नहीं दे सकता। तो मैं भी उसी ने इस कुर्सी में बिठाया है, मगर तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग, बौद्ध को अलग करोगे। क्या ये तुमसे उम्मीद थी? तुम जब दुनिया के दौरे पे जाते हो, अक्सर जाते रहते हो, तो वहाँ क्या सिर्फ हिंदुओं को बात करते हो? वहाँ तो तुम हिंदुस्तान की बात करते हो। यहाँ के 140 करोड़ बाशिंदों की बात करते हो, उसमें हम लोग सब हैं। हम तो 22 ही करोड़ है, तुम्हें 22 करोड़ से इनको डराने की कोशिश कर रहे हो। अफसोस अफसोस अफसोस। इसे आपसे कहता हूं खबरदार नहीं है, इनको डर इस झंडे से क्यों है? तो ये झंडा कभी झुका नहीं है, इंशाल्लाह मैं झुकेगा, कभी भी नहीं झुकेगा। ऐसी ताकतों का मुकाबला करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। अगर हमारा सचमुच हमारा ईमान सही है कि हर एक इंसान, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बराबर है। पैदा करने वाला वो है। जब हम पैदा होते हैं क्या हमें पता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं? है पता? मगर अल्लाह ताला किसको क्या देता है उसका हो जाता है, उस धर्म का हो जाता है। कोई धर्म, मैं आपसे कहता हूं, कोई धर्म बुरा नहीं है। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। मुझे कोई मजहब दिखाइए जो ये कहता हो कि बेगुनाह का खून करो, उसके साथ बलात्कार करो, उसके घर को लूटो, उसको आग लगाओ। कोई मजहब ये नहीं कहता, बल्कि हमारा मजहब तो साफ कहता है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और बातें करने लगे, उनसे मिले, तो सहाबा साहब उठ गए, कहा जनाब ये हमारे लोग नहीं हैं, ये हमें यूं ही एक पीठ मोड़ लेते हैं, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं। अल्लाह ताला ने उसी वक्त वही भेजा और कहा है मेरे प्यारे रसूल, इनसे कहो कि अगर तुम इनके मजहब के बारे, खुदा के बारे में कुछ कहते हो और ये तुम्हारे खुदा के बारे में उसको कहेंगे, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? लकुम दीनुकुम वलिय दीन आया था, ये भूलिएगा नहीं। और डराते हैं इनको, और हमारे फौजियों से कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये है और वो है। अरे मुझे ये तो बताओ, रायशुमारी किसने करवाई थी? किसने रायशुमारी का नारा सुप्रीम कोर्ट वहां यूनाइटेड नेशन में ले गए थे? कौन ले गया था? मरकज की हुकूमत ले गई थी, और आज तक वो रायशुमारी नहीं हुई। हम उसके जिम्मेदार नहीं है, आप लोग जिम्मेदार हो दिल्ली में और पाकिस्तान में। जब भी रायशुमारी का आदमी मुकर्रर किया गया कि रायशुमारी करेगा, तो क्या होता था? हिंदुस्तान कहता था नहीं ये पाकिस्तान का हामी है, हमें मंजूर नहीं है। दूसरा फिर कहता, दूसरे लाते थे तो पाकिस्तान कहता था नहीं ये हिंदुस्तान का है, हमें नहीं मंजूर। और इसी महीने साल हर साल निकाले। ये याद रखिएगा, जब जो हमें डराते हैं, ये कहते हैं इनको डराया गया है, इनको ये देख रहे, इनको तारीख किसी को पता नहीं है, तारीख से बहुत दूर है, बहुत दूर। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या क्या जुल्म ने उठाए हैं। मेरे वालिद के कितने कैदें नहीं मिली उसको, मगर अपना ईमान नहीं बेचा, उसे लोगों को नहीं बेचा, मरते दम तक लोगों के साथ रहा और कहा उनसे कि जब तक तुम उस जगह पे वापस नहीं जाओगे जहां हमने तुम्हारे साथ इलाहा किया है,
हमें कोई चीज मंजूर नहीं है। जो मेरे वालिद का खत है जो वहां उनके मेज पे पड़ा है, वज़ीर आज़म के मेज पे पड़ा हुआ, और फिर हमसे कहते हैं हमने कभी बेवफाई नहीं की। बेवफाई वहां से उन्होंने बेवफाई क्या भूल गए? मेरा कसूर क्या था जब मुझे 84 में डिसमिस किया? वो मैं झुकने वाला नहीं था, मैं अंगूठा चाप नहीं था, मैं अंगूठा करने नहीं था। इसलिए आपसे कहता हूं ये जो आज फिर रहे हैं, सैन ने बयान किया आपके सामने, ये जो आपके सामने घूम रहे हैं कहते हैं हम हैं, उनसे जरा पूछिए अल-बरख किसने बनाया? कौन लाया बंदूक यहां? किसने यहां हमारे लोगों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, हमारे बुजुर्गों को मारा? कौन थे? पूछिए उनसे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने सुना नहीं होगा। जब 84 में मुझे डिसमिस किया गया, मोहतरम गनी नौन साहब मेरे घर आए और कहने लगा मुझसे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। मैंने हाथ जोड़ से कहा, मैंने खुदा के वास्ते क्यों जा रहे? कहा मैं वहां से बंदूक लाऊंगा। मैंने कहा बंदूक क्यों लाऊंगा? पहले हम 12 वो बदमालूम हुआ, हमारे घर खत्म हो गए, हमारे लोग मारे गए जब वो आए थे। अब तुम बंदूक लाओगे? हम बेचारे मुर्गा खुद मारते नहीं है, खुद मुर्गा को नहीं करते, बल्कि ढूंढते हैं कसाई को जो इसको खाश करेगा, खुद नहीं कर सकते। और हमको बंदूक आएगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारी माँ और बहनों की इज्जत लुट जाएगी, हमारे बुजुर्ग बच्चे मारे जाएंगे। वही हुआ। जब वहां से वापस आए, मेरे पास मिलने आए और मुझसे कहा फारूक साहब आप सही थे, वो तो सिर्फ हमारी जमीन से मोहब्बत करते हैं, वो लोगों से मोहब्बत नहीं करते। उसका असर ये हुआ कि मौलवी साहब के दिन, मौलवी फारूक साहब के दिन उनको भी शहीद किया गया। उनका बेटा आपके सामने कहता है ना, फारूक ने हमारी उसकी वो जो सिक्योरिटी है उसको, मैंने कोई सिक्योरिटी रिड्यूस नहीं की, उनसे बोलना चाहिए। बल्कि मैंने उनसे बार बार कहा होशियार रहिएगा, मारने वाले वहां से आएंगे, जिस तरह मौलवी फारूक साहब को उन्होंने शहीद कर दिया घर के अंदर। क्या बोलते हैं? और आज ये हिंदुस्तानी बने हुए हैं। शर्म तो मुझे इस बात पे आती है कि वजीर आज़म और ये फौज उनको समझते हैं हिंदुस्तानी, जिनने हिंदुस्तान के यहां पे चुसे उतार दिए। ये बोलो और आपके पास आते हैं, हम आपके लिए ये भी करेंगे। उनसे ये पूछिए ये डीलिमिटेशन जो हुई, क्या ये लोगों की बेहतरी के लिए हुई? क्या होता अगर ये लोग, देखिए कमाल देखिए, अगर एमपी बनता है अनंतनाग का, इस्लामाबाद जिसे कहते हैं, आज इन्होंने पुंछ और रजौरी में से जोड़ दिया है। उसका रास्ता सिर्फ 4 या 5 महीने के मुगल रोड खुला रहता है। मुझे बताइए वो क्या उनके साथ इंसाफ करेगा? या यहाँ का जो एमपी उमर बना है और बनेगा इंशाअल्लाह, क्या वो क्या इस तरह करेगा आप लोगों की खिदमत? और इस पहाड़ के ऊपर ये पहाड़ बंद हो जाता है, कौन सा हेलीकॉप्टर है? क्या सोचा इन्होंने? क्या हो जाता उस वक्त अगर ये दिल्ली की हुकूमत हमसे इंसाफ करती कि पुंछ वालों को, रजौरी वालों को एक एमपी सीट दे देती और यहाँ के लोगों को एक एमपी सीट देती, क्या हो जाता? वो आपके साथ पहुंचा, आपके दर्द को देख सकता था, आपकी मुश्किलें दूर कर सकता था। इन्होंने सिर्फ हमारे दिलों पर छुरी मार दी, किसी को यहां बांटा, किसी को वहां तोड़ा, किसी को वहां किया, मगर ये नहीं जानते कि अल्लाह का गजब भी जब आएगा, कभी भूलिएगा नहीं। फिरौन जो अपने आप को कहता था मैं इतना बादशाह हूं, कितने फौज है,